So I have a surprise. What I really like about him is that he's a very good friend. That's true. You know, he's there for his people. That's He's true. disciplined. I like that about him. And you can annoy him as much as you want, but he will not get annoyed. That's true. But only selectively, like only select people who he has Select few allowed people, yeah. in that circle. I don't care about others, but I know I annoy him and he does not get trouble. How So, yeah, sweet. that's- You guys are a little beyond friends, which you have also accepted. That you're not friends. You're more than friends. I'll tell you what. I didn't say that. I said कि एक टाइम पे वैसा एक फील आ गया था. But we stopped it right there. And to be honest, मैं इन्हीं दोनों से मिला. मतलब मैं खुद से जाके जो मिला हूँ. ईशा, विविन. That's it. Not meeting any other people from Big Boss. तो मैंने 10th के बाद बोला भेज दो मुंबई, बोले नहीं 12th complete. I said okay. तो मैंने 12th कंप्लीट किया. Then I said okay, अभी जाता हूँ मुंबई. They said नहीं ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लो. I said done. This is the last one. BBA किया मैंने and the very next day I came to Bombay. Monthly मुझे 10,000 रुपीज़ आसपास मिलते थे जब मैं मुंबई आया था and 7,800 was my PG's rent. तो 2,200 में मेरे को मंथ चलाना होता था and trust me मैं चला लेता था. मुझे पता चला मुंबई में 24/7 ये सब दुकान होता है. I went. मैंने मैनेजर से बात किया, मेरे को नाइट ड्यूटी पे लगा दोगे क्या? तो he said okay, this is the thing, you will have to arrange this और ये सब पंच इन करना होगा जो भी दवाई वाई है. डन, ठीक है भाई कर दूंगा. तो 8,000 रुपए ही सेट की मिलेंगे मंथली. आई सेड चल 8,000 तो मिल. You were shamed a lot for being skinny. हाँ. How did you deal with that? हाँ सी मतलब मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर तक बहुत स्लिम ट्रिम था, एक्सट्रीम स्लिम ट्रिम था. एक लेडी बैठी थी यहाँ पे मॉनिटर पे, तो मैं ऑडिशन दे रहा था. तो अब मैं बहुत कंफ्यूज हो गया कि यार कहाँ लुक दूँ मैं, लेफ्ट राइट कहाँ लुक दूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा. और फिर एक बार किया, पहले गाली से शुरुआत की उन्होंने. मैंने मॉक शूट किया सना के साथ, तो आई गेट टू नो कि अभी उसमें दूसरा एक्टर है. You know, today I'm sitting with somebody whose journey is something that I can relate to myself. Coming from a small town, not knowing what Mumbai and what Mumbai's people are gonna be like, being in a strange city, in a strange setup, completely on your own, facing all the rejections, and then finally not giving up on your authenticity. लोग कुछ भी बोले, आप जो हो अंदर से वो आज भी वही हो. I think this is a story of success, and also my tribute to all the Avisha fans who have been supporting me and my channel Nonsense. Today's guest on Mintra Presents of the record only on Nonsense is none other than Avinash Mishra. Hello, finally! भैया आज तो मुझे लग रहा है लॉटरी का टिकट काट लेना चाहिए मुझे कि फाइनली आपके दर्शन हुए. व्हाट्स हैपनिंग? ये जो इतने महीने आपने मुझे वेट करवाया, बताइए ये क्यों करवाया आपने वेट मुझे? First of all, thank you so much, Nan, for that lovely introduction. And You deserve it. Wait, मैंने करवाया नहीं, वो हो गया यार. मैं खुद आना चाहता था and मैंने बहुत लिमिटेड रखे हैं अपने ये पॉडकास्ट. बहुत कम लोगों के यहाँ जा रहा हूँ मैं and मेरे लिस्ट में आप हमेशा थे कि मैं नयन के यहाँ जाऊंगा ही जाऊंगा. Sweet, I know that. Anyway, very few people were there who were supporting me when I was inside Big Boss house. बाकी की मीडिया का तो हम सबको पता है. तो लाइक कि नहीं नयन ने सपोर्ट किया है तो obviously I'll come to your podcast. I know that. And हाँ थोड़ा टाइम लग गया but good note ये है कि I was working, a lot of projects are there, तो वो सब खत्म करके मैं And आपके that's the best thing, right? Because you know when I speak about your journey, I'm gonna start off with your journey. जब आप अंदर थे ना, Yes. तो Brute India ने एक वीडियो डाला था. And that is when I got to know about this entire journey that you had in a matter of 4 minutes. And Brute, amazing. Because that was the time जहाँ पे आपको अंदर, घर के अंदर आपको विलन बुलाया जा रहा था. तो उन्होंने एक बहुत अच्छा हेडलाइन के साथ डाला था, from a small time Raipur boy to the villain of Big Boss, Avinash Mishra. You know, when you look back at yourself, बचपन से ही एक्टिंग का कीड़ा था? यार it might sound very cliche and but actual में जब मैं बहुत छोटा था ना, मतलब इतना हाइट समझ लो, इतनी हाइट होगी, तब से मैं घर में बोलता था I want to be an actor, मेरे को हीरो बनना है. And I guess वो इसलिए हुआ because मेरी मॉम टीवी बहुत देखती थी, तो वो टीवी देखती थी, मैं भी बैठ के देखता था. उसमें अब मूवीज में ऐसा डिशूम चल रहा है ना, वो हीरो देख के मुझे अच्छा लगता था, तो मैं तब से बोलता था मुझे एक्टर बनना है. एंड धीरे धीरे वो इतना सीरियस होता चला गया कि मैं 10th में भी बोला कि मुझे एक्टर बनना है. They got to know कि अच्छा अभी तो ये 10th कर रहा है यार, बोर्ड में भी बोल रहा है. फिर उसके बाद 11th 12th and I kept on repeating I want to be an actor. So they got that seriousness कि हाँ यार he's serious. तो अब मिडिल क्लास में कैसे होना, they try पहले कि चलो यार अभी शायद बोल रहा है, हाँ लगा हुआ है.
तो मैंने 10th के बाद बोला भेज दो मुंबई, बोले नहीं 12th कंप्लीट कर। आई सेड ओके, तो मैंने 12th कंप्लीट किया। देन आई सेड ओके अभी जाता हूँ मुंबई। दे सेड नहीं ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लो। आई सेड डन, दिस इज द लास्ट वन। बीबीए किया मैंने एंड द वेरी नेक्स्ट डे आई केम टू बॉम्बे। ओ बीबीए खत्म करते ही? द वेरी नेक्स्ट डे आई Oh, केम wow. टू बॉम्बे ऑन 17th June 2016। Oh, हाँ। I came to Bombay हाँ। on 10th of July 2014. वी रिमेंबर द डेट्स। हाँ, I मुंबई की rem- जर्नी का I- ये बहुत अमेजिंग चीज है कि वी रिमेंबर द डेट। I remember the date because when you're speaking of all this, मेरा 2013 में कोर्स कंप्लीट हो गया था जर्नलिज्म का। 2014 यू विल नॉट बिलीव इट्स सो गॉड सेंट। 2014 में 10 जुलाई को मैं यहाँ आ रहा था बॉम्बे। मैंने फिक्स कर लिया था मैं डीएनए में जॉब करने वाला था। 6th of July we had the convocation ओके and I believe that studies was very an important part of my life. I was very studious. मतलब वो होते हैं ना कि जिनको पढ़ने मतलब पढ़ाई करना अच्छा लगता था, वो मैं वो बंदा हूँ कि अगर मेरा कल एग्जाम है, इंडियन आइडल चल रहा है, मुझे इंडियन आइडल देखना है, पर मैं मैथ्स कर रहा हूँ इंडियन आइडल देखते देखते। 12th में कितने? I was a science student with biology and I scored 92.5. क्या बात कर रहे हो यार I was going to become a doctor. गाइस। 92.5%। But nobody believes it. But glad to have you on the podcast. No, this is exactly I chose my passion. Okay, and that, you know, when I See, that is saw, the fight now. Absolutely, I'm telling you, That is when I the saw fight. that video, that's why I said that I could relate to your story because I've had a similar journey coming from a middle class family, right? How difficult or easy was it for you to convince them eventually कि नहीं मुझे ये करना है? And because when you come from a middle class family ना, they look for financial security. वो भी गलत नहीं है, वो चाहते हैं कि नहीं, अपने that's बेटे बेटी एक जगह पे पहुंच जाए, और उनके लिए ये मीडियम ही इतना अनसर्टेन है क्योंकि उनको कोई नॉलेज नहीं नहीं, होती। true, So what were the things that your mom and dad actually questioned you about? Man, I think I'm very blessed because जब मैंने ये बोला and मुझे यही करना है, तो मुझे कभी घर वालों के साइड से ये फील होने नहीं दिया उन लोगों ने कि यू नो कि हम मिडिल क्लास लोग हैं, हमें भी फाइनेंशियली प्रॉब्लम आएगी या कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इट नेवर मेड मी फील लाइक दैट। लाइक यू वांट टू डू इट, ओके बेटा वी ट्रस्ट यू, हमें भरोसा है तुम पे, गो एंड डू इट। एंड आई गेस वो कॉन्फिडेंस इतना उन लोगों ने दिया ना, तो इसलिए मैं यहाँ पे आके अपने काम पे फोकस कर पाया। बिकॉज उस टाइम पे भी आई क्लियरली रिमेंबर कितने पैसे मुझे मिलते थे। मतलब मैं बताऊँ तो मंथली मुझे 10,000 रुपीज आसपास मिलते थे जब मैं मुंबई आया था, एंड 7,800 वाज माय पीजीज रेंट। तो 2,200 में मेरे को मंथ चलाना होता था, एंड ट्रस्ट में चला लेता था। तो आई रिमेंबर दैट जर्नी। एंड वो उस टाइम पे जब भेजते भी थे तो मे भी कभी कभी वहाँ घर में कम पड़ता होगा, बट मुझे कभी फील नहीं होने दिया। अब मुझे पता है सारी बातें, अब बता देती है मम्मी, तो अब मुझे पता चला है। बट आते ही मैंने कुछ कुछ काम स्टार्ट कर दिए थे। एंड दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, आई हैवंट शेयर दिस विद एनीवन। मैं जहाँ रहता था ना, शेरे पंजाब में, तो मैं अंधेरी ईस्ट। हाँ अंधेरी ईस्ट, शेरे पंजाब में, तो उसके नीचे ना एक I used to stay in JB Nagar. हाँ अंधेरी ईस्ट। तो मैं जिस बिल्डिंग में रहता था उसके जस्ट नीचे वेलनेस फॉरएवर दुकान था, ठीक है। तो मेरी फर्स्ट डे की जर्नी तो बहुत ही अमेजिंग है मुंबई की। तो आते ही मुझे एक मैंने क्रैक कर लिया था ऑडिशन, तो मेरे को एक काम मिल गया था। उसके बाद एक थोड़ा लॉन्ग गैप था, फिर मैंने एक ऐड किया, तो ऐड में कुछ कुछ पैसे मिल गए जिससे मेरा जिम का खर्चा और यहाँ वहाँ जाना रहना खाना हो जा रहा था। फिर एक फेज आया था जहाँ पे बहुत लंबा गैप जा रहा था, एंड समवेयर आई रियलाइज कि यार घर से पैसे मांगने में अच्छा नहीं लग रहा है बार बार, बिकॉज वो अमाउंट 10,000 बोलने में छोटा लगता है, हमारे लिए बहुत था उस टाइम। तो मैंने एक बार डिसाइड किया कि वेलनेस फॉरएवर जो नीचे मेरे बिल्डिंग की दुकान है, मुझे पता चला मुंबई में 24/7 ये सब दुकान होता है। आई वेंट, मैंने मैनेजर से बात किया, यार मेरे को नाइट ड्यूटी पे लगा दोगे क्या? तो उसने बोला कि क्या कर लेगा? सर ओके वट एवर इट इज़ यार, जो भी है, मैं यहीं सी बिल्डिंग में रहता हूँ, तो मेरे पास एक छोटा सा काम जो भी होगा हो जाएगा। तो ही सेड ओके दिस इज द थिंग, यू विल हैव टू अरेंज दिस, और ये सब पंच इन करना होगा, जो भी दवाई ववाई आएंगे। ऐसे डन, ठीक है भाई कर दूंगा। तो 8,000 रुपये ही सेट की मिलेंगे मंथली। आई सेड चल 8,000 तो मिल गए। तो मैंने फ्राइडे बात की, मंडे ज्वाइन करना था, सैटरडे आई वेंट फॉर एन ऑडिशन, संडे मिल गया। वाओ। तो सैटरडे मैंने ऑडिशन दिया, संडे मुझे वो फाइनल कॉल आ गया कि यू आर डन। तो ऐसे चलो यार ये मिल गया तो अभी उसको ड्रॉप करते हैं, बिकॉज वो तो मैं इसलिए कर रहा था कि चलो यार कुछ मिल जाएगा, बट वो फिर मिल गया तो मैं बोला चलो ठीक है, अभी मैं अपना नाइट का रूटीन नहीं बिगाड़ता, टाइम पे सो जाऊंगा। बट आई वाज दैट पैशनेट। हाँ कि यार घर वालों को उतना स्ट्रेस ना दूं, कुछ हो रहा है तो अपने से कुछ कर लूं। तो वो मैंने किया था, मुझे बहुत अच्छे से याद है। अंधेरी ईस्ट बिल्डिंग का नाम नहीं याद आ रहा था, वो ही बताता मैं, प्रीतम अपार्टमेंट्स।
वाह. यस प्रीतम अपार्टमेंट्स, तो उसके नीचे वेलनेस फॉरएवर है, तो हमने बात करी थी. Now whoever will rent Pritam apartment should send the commission to Avinash. नहीं भाई रखो. नहीं, but I want to ask you this that you know जब मेरी भी सिमिलर स्टोरी है, ठीक है. मेरे तो एक बड़े भाई है, 10 साल मुझसे बड़े हैं. तो कभी भी कमी होती है ना तो फील नहीं हुआ है मुझे. मेरे भाई ने तो बहुत बुरे दिन देखे हैं मेरे मम्मी पापा के साथ, मैंने देखे नहीं है. बिकॉज आई ऑलवेज से दैट आई हैव कम फ्रॉम दैट प्रिविलेज. वी वर नेवर रिच बट वी वर मिडिल क्लास, बट इट नेवर केम टू मी. मतलब अगर प्रॉब्लम भी हुई है घर पे फाइनेंशियली तो वो मेरे तक आई ही नहीं है. दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस ना यार. मतलब जो घर में माता पिता होते हैं, दे डोंट लेट यू फील कि घर में पैसे कम है ना. तो वो जब ये सब चीजें करते हैं, जब हम बड़े होते हैं और हमको रियलाइज होता है कि यार हमको पता नहीं चलने दिया, तब हमारे अंदर बहुत सारी वैल्यूज जागती हैं आई गेस. एंड वो ये सब मोमेंट्स होते हैं, फेज होते हैं. उस एज में ना हमें समझ में भी नहीं आता है सब चीजें. तो अभी हम जब ये सब चीजें समझते हैं, जानते हैं ना, तो वी वैल्यू देम मोर. That's so true. That's so true. You know, when I was once watching Donkey, हाँ. एक सीन पे तो मैं फूट के रोया बिकॉज जब मैं पहले आया तो पहले महीने में आई यूज्ड टू स्टे इन दिस गोरेगांव वाला फ्लैट. Okay. गोरेगांव ईस्ट में. ओके. Okay. विद somebody who was into हाँ. casting. हाँ. तो वो बंदा आता नहीं था घर पे. इट वाज अ शेयरिंग रूम. इट वाज अ ह्यूज बेड शेयरिंग रूम. और उसने ना अपने दोस्तों को चाबी वाबी दे रखी थी, तो कभी कभी उसके दोस्त आ जाते थे. तो मेरा कुछ नहीं था, मैं चुपचाप आके आई यूज्ड टू लाइक स्लीप. And most of the days he would not come. And I am a person who's never, like, I don't judge anybody who drink or whatever, who smoke, but I never drank or smoke. Very nice. And one day I have walked in and I see in the other room there is somebody doing something really like illegal, almost borderline illegal. And मुझे ना palpitation आ गया कि I was like, मैं तो किसी को नहीं जानता बॉम्बे में, और अगर इनको पकड़ेंगे तो ये तो मुझे भी लेके जाएंगे because मैंने तो कुछ किया ही नहीं है. You know, those thoughts come. So I ran from that house the next day. I had paid 2 months का rent, I had paid brokerage, I had paid security deposit because मैं भाग गया तो सारे डूब गए. Then I didn't have money. What did you do? For half a month, 15-20 days, salary भी नहीं आ रही थी तब, because तब तक 1 महीना हुआ नहीं था. I have gone and literally begged these bunch of boys who used to stay in Goodwill Society, JB Nagar, कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपको नहीं दे सकता सिक्योरिटी डिपॉजिट, मैं आपको नहीं दे सकता ब्रोकरेज, बट मुझे एक रूम चाहिए और मुझे छोटा सा ही रूम भले चलेगा. एंड दे वर सो नाइस. आई एम स्टिल इन टच विद देम. सम ऑफ देम आर वेरी वेरी नाइस. उन्होंने मुझे रहने दिया एंड देन देयर आई स्टेड फॉर 1.5 years. But these are stories that you will remember when you reach certain position, age, right? certain point in a life, then only you realize. ऐसी स्टोरीज है जिंदगी में जहाँ पे आपको लगा कि ये you know these are also stories. मैं क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि आपकी जिंदगी में गुजर रही है, बट आप अपने मम्मी पापा को भी ज्यादा बोलना नहीं चाहते बिकॉज दे ऑलरेडी परेशान है. तो आप और बोलोगे तो और ज्यादा अफेक्टेड हो जाएंगे. ऐसा कभी मोमेंट्स हुआ? Yeah, I'll tell you one thing. After इश्कबाज, ठीक है, तो अब स्टार्टिंग में मैं आया मुंबई, सेठ जी मेरा पहला शो था, तो बहुत कम पेमेंट था उसमें, तो बस आई वाज रियली हैप्पी कि आई गॉट लॉन्च्ड एज अ लीड, तो वो हो गया. एंड देन आई डिड इश्कबाज. तो इश्कबाज वाज अ कैमियो, बट दैट वाज अ वेरी पॉपुलर शो, वेरी पॉपुलर शो. तो वो किया मैंने, ठीक ठाक पेमेंट वगैरह ली. तो उस टाइम पे तुरंत मुझे बहुत सारा पेमेंट मिलना स्टार्ट हो गया. तो थोड़ा दिमाग में चढ़ गया, अरे मतलब यार बहुत छोटा था यार, 20 साल का था मैं, तो पैसे वैसे मिल गए मुझे. आई वाज लाइक ओके वाह यार इतने पैसे मिल गए मुझे, आई विल थ्रो अ गुड बर्थडे पार्टी. तो मैंने वर्सोवा में कहीं बहुत बड़ा पूरा क्लब बुक करके कुछ अच्छी खासी पार्टी कर ली, बस शो ऑफ, टू बी ऑनेस्ट, जस्ट शो ऑफ, आई डोंट नो व्हाई. तो मैंने कर लिया उस टाइम पे. एंड जब कर लिया, पार्टी वार्टी हो गई, फिर कैमियो था तो ऑब्वियसली मैंने कुछ टाइम के बाद छोड़ दिया. अब उसके बाद घर पे बैठा हूँ. सी दिस इज आफ्टर 2 shows. अब मेरे पास रेंट देने के पैसे नहीं है. मतलब पीपल नो मी एज कि अरे यार अविनाश का तो करियर स्टार्ट हो गया, 2 show कर लिया, बट नाउ आई डोंट हैव मनी. आई स्पेंड अ लॉट मनी गोइंग आउट, मतलब क्लब में जाना, पार्टियां करना. उस टाइम पे ड्रिंकिंग की भी हैबिट हो गई थी, स्मोक भी करता था, तो बहुत सारी चीज़ों में बहुत पैसे वैसे मैंने ख़त्म कर दिए. एंड टाइम ऐसा आ गया कि अब रेंट देने के पैसे नहीं. तो आई कॉल्ड माई फ्रेंड, स्कूल फ्रेंड, क्या तू थोड़े पैसे दे दे यार रेंट के, मैं तो को नेक्स्ट काम मेरा इसी मंथ में मैं करके दे दूँ. आई फेल्ट रियली बैड कि घर वालों से तो मांग नहीं सकता, तो दोस्त से मांग के देना पड़ा. एंड जब ये सब चीज़ें हुई, देन आई रियलाइज कि यार ये ना, दिस इज़ द मोमेंट, दिस इज़ द फेज वेयर आई हैव टू रियलाइज
कि ये सब चीजें बहुत आएंगी इस इंडस्ट्री में, आई हैव टू होल्ड बैक, Yeah. आई हैव टू फोकस ऑन द थिंग्स विच आर राइट. तो उस एज में एक चीज समझ में आ गई कि जो पैसे आ रहे हैं, जो फेम आ रहा है, उसको संभालना होता है. एंड नेक्स्ट शो वाज मरियम खान. वहाँ से जो पेमेंट है मैंने बहुत संभाल के रखी, बट आई स्टिल रिमेंबर कि ये सब चीज़ें, पार्टी करना, बहुत सारा एकदम ग्रुपिज्म करके पार्टी करना, ड्रिंक श्रिंक, तो दोज आर थिंग्स व्हिच विल जस्ट डाइवर्ट योर माइंड, तुम्हारा फोकस हिलाएगा. Temporary. या एंड आई एम ग्लैड कि अब मैं ना ड्रिंक ना स्मोक कुछ नहीं करता हूँ. That I can vouch for, by the way. We were two of those people who were surviving on nothing alcoholic at a party which we were both invited to. And I वो saw party. that. And हम लोग, we were going and we're like, अच्छा no, we don't drink. Everybody's coming, we don't drink. We don't drink. And then we looked at each other and like, कितने लोगों को बोलना पड़ेगा that we don't drink. यार देखो किया था मैंने, बट मत करो, बिकॉज आई रियलाइज्ड यार मैन, यू नो, हेल्थ पे ध्यान देंगे ना तो आप लंबे रेस के. That's true. दिस इज लाइक द मोटो ऑफ दिस इंडस्ट्री. Absolutely, especially in this industry and in Exactly. life in लाइफ general. ऑल्सो यार, ऑब्वियसली इन लाइफ ऑल्सो अगर आपको हेल्दी रहोगे तभी आप लॉन्ग टर्म Yeah. आप कुछ अच्छा कर पाओगे. सो प्लीज डू दैट यार, ये सब बेकार सी चीजें हैं. सो अवॉइड डूइंग दीस थिंग्स. But you know, you came, you said कि जिस दिन आपका BBA का एग्जाम हो गया उसके हाँ. नेक्स्ट दिन आप आ गए. यस 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 ये एक बहुत बड़ा मूव था. यस. तो घर देख के आए थे, कैसे किया सब नहीं, कुछ? मेरा एक फ्रेंड था यहाँ पे, म्यूजिशियन है वो, एंड ही टोल्ड मी कि तेरा, मैंने अंधेरी में एक पीजी है, मैंने आंटी से बात कर ली है, मुझे फोटोज वगैरह क्लिक करके भेज दिया, ये बेड मिलेगा. ऐसे ओके फाइन डन. तो मैं जब आया तो मेरा वो बेड डन था कि हाँ चलो मैं अंधेरी ईस्ट में रहूंगा. आई हैड नो आइडिया कि अंधेरी वेस्ट में ज्यादा एक्टर्स रहते हैं, अंधेरी ईस्ट अलग है. बट आई एम ग्लैड मैं अंधेरी ईस्ट में था, और मुझे ईस्ट इतना पसंद आ गया, मैं कभी अंधेरी वेस्ट गया ही नहीं. अंधेरी वेस्ट मतलब बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन, ये वो चीजें. आई वाज ग्लैड कि मैं अंधेरी ईस्ट में रहा, एंड वहीं पे मैंने पूरा अपना जर्नी स्टार्ट किया. एंड अभी भी मैं ईस्ट में ही रहता हूँ, और मैं गोरेगांव ईस्ट में रहता हूँ. Oh, you stay in Goregaon East. नाउ आई स्टे इन गोरेगांव ईस्ट. Oh, nice. But उसके बाद first day you cracked an audition, you said. See, उस टाइम ना फेसबुक बहुत चलता था, हम्म. ठीक है. तो मैंने फेसबुक पे बहुत सारे ग्रुप्स, ऑडिशन ग्रुप्स में मैसेजेस कर लिए थे उस टाइम पे कि यार मुझे, मैं आ रहा हूँ, ये वो ऐसा ऐसा. तो मैंने कहीं के नंबर भी दे रखे थे. तो आई केम टू बॉम्बे एंड आई रिमेंबर वेरी क्लियरली, आई वेंट टू इजमीमा टावर्स, इन्फिनिटी मॉल के पीछे. I know. ठीक है, Some of तो- my clothes come हाँ. from there. तो इजमीमा टावर्स में कोई तो स्टूडियो था, मॉडलिंग स्टूडियो. आई वेंट देयर, वहाँ पे मैं गया, वहाँ पे मैंने बोला यार मॉडलिंग का कुछ है, तो ही सेड कि नहीं यार यहाँ तो बंद हो गया. आपको कौन बताया? आई सेड नहीं, मैंने देखा था इंटरनेट वगैरह पे. तो बोला नहीं नहीं अभी तो कुछ नहीं होता. तो मैंने अंदर एक ग्रीन स्क्रीन देखा था. मैं बोला भाई बस एक फोटो निकाल दोगे मेरा? मेरे को ना सब लाइट्स वाइट्स देख के बड़ा अच्छा लगा था. तो मेरे इंस्टा पे भी है वो आज. मैंने बस क्लिक करके डाल दिया मुंबई ऑडिशन फर्स्ट डे. कुछ ऑडिशन नहीं था, बस ऐसे ही डाल दिया. तो वो मैंने कर दिया ग्रीन स्क्रीन पे. फिर मैं नीचे निकला इजमीमा टावर से, एंड आई सी कि मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप में एडेड हूँ. लकीली हाँ, जस्ट मैं फेसबुक पे बहुत सारे मैसेजेस करके रखता था कि मेरा नंबर है कुछ है, तो मैं व्हाट्सएप के ग्रुप नहीं, ऑडिशन वाले, हाँ. तो उसमें ऐड ऑन हो गया. उसमें कुछ रिक्वायरमेंट आई थी कि ये रिक्वायरमेंट है, हीरापन्ना मॉल में ऑडिशन चल रहा है, काम. मैं कॉल कर दिया सीधा कि भाई मेरा सेम रिक्वायरमेंट जो जो आपका है सब है मेरे पास, आप बोलो मैं आऊँ. ही सेड आ जाओ. आई वेंट फॉर द ऑडिशन. मैंने पहली बार लाइफ में देखा इतने सारे लड़के खड़े हैं, ऑलमोस्ट 80-90 लड़के सब बाहर खड़े हैं, एंड ऐसे ही हैंडी कैम वगैरह हैं, एंड ऑडिशन चल रहा है. मुझे कुछ नहीं आता था नैन कि हाय दिस इज अविनाश मिश्रा एंड दीज आर माय प्रोफाइल्स. मैं वहाँ देख देख के समझ रहा था, और इंग्लिश में स्क्रिप्ट थी वहाँ की. यहाँ पहला स्क्रिप्ट इंग्लिश में, ठीक है. तो मैंने पढ़ा, कुछ कुछ तो समझ में नहीं आया. मैंने गूगल किया, अच्छा इसके मीनिंग क्या है. फिर मैं लेके बाहर बैठ गया जमीन पे कि भाई इसको रट लो. रट के गया अंदर, ऑडिशन किया, और बहुत इंटरेस्टिंग ऑडिशन था. मैंने किया, बाहर निकला कांपते हुए कि मैंने कर दिया भाई, खत्म. नेक्स्ट डे मैं वापस जा रहा था ऑडिशन के लिए महाड़ा में. आई गॉट अ कॉल कि अविनाश यू आर शॉर्ट लिस्टेड, आज तुम्हारा शॉर्ट लिस्ट वाला ऑडिशन होगा महाड़ा में. वो भी पिक्चर मैंने क्लिक करके इंस्टाग्राम पे डाली कि मेरा फर्स्ट ऑडिशन और मैं शॉर्ट लिस्टेड हूँ. Wow. फिर सेकेंड डे मैंने उसका शॉर्ट लिस्ट ऑडिशन किया. मेरे को शाम में कॉल आता है, यू आर फाइनलाइज्ड. मेरे को ड्रीम लग रहा है यार, सेकेंड डे मेरा क्या हो रहा है. थर्ड डे मुझे वो लोग पिकअप करने आए मेरे पीजी के पास, और मैं मड आइलैंड में शूट कर रहा हूँ. ये भी मैंने अपने इंस्टाग्राम में पोस्ट करके डाला हुआ है. So what was that shoot for? और दैट वाज एरिना एनिमेशन डिजिटल एड. है मेरे इंस्टाग्राम पे, नीचे स्क्रॉल करोगे तो मिल जाएगा. I will तो find it. तो इट फेल्ट लाइक कि यार भगवान का एक सिग्नल है कि यू आर ऑन द राइट Right ट्रैक. track. डोंट वरी अबाउट इट. प्रिपरेशन बहुत तगड़ी करके आए हो तुम रायपुर से. जस्ट बी हियर, डू योर हार्ड वर्क, बी डेडिकेटेड, यू विल फाइंड योर वे. You know, Avinash, आज लोग आपको बोलते हैं कि यू आर सो टैलेंटेड, यू आर अ गुड एक्टर, यू लुक सो गुड.
on screen persona इतना अच्छा है. Tell me something in the beginning. In that same video, I saw that you were shamed a lot for being skinny. हाँ. How did you deal with that? हाँ सी मतलब मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर तक बहुत स्लिम ट्रिम था, एक्सट्रीम स्लिम ट्रिम था. वो ऐसा भी बोल सकते हैं यार कि मतलब जेनेटिकली भी बोल दो, मेरे घर में सब लोग स्लिम ट्रिम है, कोई बॉडी बिल्डर वाला कभी आया ही नहीं, कोई किसी ने बॉडी नहीं बनाई. तो वो जेनेटिकली भी है कि बहुत स्लिम ट्रिम था. बट आई फेल्ट कि दिस इज नॉट द राइट वे. तो क्योंकि मुझे पता था कि मैं आफ्टर बीबीए निकल जाऊंगा, एक भी दिन वेस्ट नहीं करूंगा. ऐसे यार कुछ तो प्रिपरेशन होनी चाहिए अविनाश, मतलब बिफोर गोइंग. तो आई वाज वेरी डेडिकेटेड कि यार चल आई विल गो, आई विल गेन वेट, आई विल गेन मसल्स, आई विल बिल्ड माई सेल्फ. चलो वहां जाके बाकी चीजें सीखेंगे, जो रायपुर में प्रॉपर चीजें अवेलेबल है वो तो मैं यूज करूं. तो आई सेड ओके आई विल गो टू द जिम. मैंने जिम ज्वाइन किया, प्रॉपरली खाया पिया. एंड ट्रस्ट में जो स्किनी होते हैं ना उनको खाना एक्स्ट्रा पड़ता है टू गेन वेट एंड पुट ऑन मसल्स. ठीक है. तो मैंने वेट गेन किया और फिर मसल्स बनाए. एंड वहाँ पे एक फोटोग्राफर हैं तो उनके साथ मैं जुड़ा, मॉडलिंग वगैरह की. वो कैमरा फियर हटाया कैसे होता है. Oh, you had camera fear also. मतलब वो समझ लो, मतलब पोजेस कैसे कहते हैं. You didn't know. टू बी ऑनेस्ट फियर तो कभी रहा ही नहीं है जिंदगी. मतलब इतना मैं हैप्पी हो जाता था यार कि चलो आज मैं शूट करूंगा, आज कुछ होगा. तो मैं उनके साथ जुड़ा हुआ था, वो फोटोज वगैरह क्लिक करके पोर्टफोलियो बनाते थे. एंड वहाँ बहुत प्रैक्टिस करता था मैं. मतलब होते ना छोटे शहरों में मिस्टर एंड मिस छत्तीसगढ़ हो रहा है, मिस्टर मिस रायपुर हो रहा है, तो वो सब मैं पार्टिसिपेट्स करता रहता था. तो वो सब कर करके मैंने अपने आप को बिल्ड किया. तो वो जो एक फेज था कि यार ये स्किनी है, मतलब ऑब्वियसली स्कूल कॉलेज में लोग बोलेंगे यार क्या है यार ये एक्टर बना है, क्या करेगा. तो दे यूज्ड टू, मतलब वो होता है यार, हर जगह होता है. ठीक है. एंड यू हैव टू गो थ्रू दीज थिंग्स. बट कभी बुरा लगा उस बात का? यार देखो, बुरा से ज्यादा ना मैं इसको अलग वे में देखता हूँ. आई हैव अ डिफरेंट विजन ऑलवेज कि व्हाई दे आर सेइंग दिस. बुरा मेरे को क्या लगेगा, मतलब ठीक है दे आर ट्राइंग टू बुली मी, दे आर ट्राइंग टू पोक. ठीक है, वो करेंगे. ठीक है. तो आई वाज लाइक व्हाई. तो आई सॉ माय सेल्फ कि ओके बिकॉज आई एम लाइक दिस, बिकॉज आई एम वेरी स्किनी, बट ओके लेट मी वर्क आउट, लेट मी वर्क ऑन माई सेल्फ. एंड मैं अगर उसको डेडिकेटली करके भी नहीं अचीव कर पा रहा हूँ तब तो मेरा ही बुरा है ना. तब तो व्हाट दे आर सेइंग दैट इज राइट. आई सेड ओके लेट मी वर्क ऑन माई सेल्फ. तो कॉलेज के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जितना मेरे को लोग बोले, थर्ड ईयर फाइनल ईयर तक देवल अरे यार क्या बिल्ड कर लिया इसने. सो मैं हमेशा लाइफ में यही करता है, क्रिप करने का ना कोई सेंस नहीं है. वर्क ऑन योरसेल्फ. सो ट्रू. वो अचीव कर लो ना तो बाकी जो बोल रहे हैं वो बोलते रह जाएंगे. तो बॉडी तभी से बनाना चालू कर दिया. एग्जैक्टली. बिफोर कमिंग टू बॉम्बे प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा ना. यू हैव टू डू योर होमवर्क, जो भी आप कर सकते हो. So I did my homework and I came to Bombay. That you know, you said that the first day you came, you went for an audition. Second day you cracked it. उसके बाद वो ऑडिशन के बाद एक और ऑडिशन आपका क्रैक हो गया जो आपने बोला. नहीं, फर्स्ट ऑडिशन हुआ, देन उसके 20-25 डेज के बाद एक और एड मुझे मिला था. सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी का टीवी एड था. वो भी है मेरे इंस्टा पे, मिल जाएगा. तो हाँ, तो वो मिला मुझे. एंड वो करने के बाद थोड़ा एक लॉन्ग गैप था. एंड यहाँ पे एक हाइपर सिटी, यू नो, हाइपर सिटी मॉल. हाँ, हाइपर सिटी होता था पहले, अभी तो वो मॉल नहीं है ना. हाइपर सिटी का मैंने एक पोस्टर शूट किया था, तो वो हुआ था. उसके बाद बहुत लॉन्ग गैप था जिसमें मैं बता रहा हूँ मैं काम के लिए चला गया था वेलनेस फॉरएवर की. यार काम दे दो, रात में कर लूं. कितने महीने थे उसके बीच में जहाँ पे आपको काम नहीं मिला था? ऑलमोस्ट 3 महीने. 3 महीने. हाँ 3 महीने. तो 3 महीने यू यूज्ड टू गो फॉर ऑडिशंस. हाँ, एवरी डे. बट व्हाट वर द थिंग्स दैट वर टोल्ड टू यू फॉर यू नो नॉट गिविंग यू द पार्ट? सी क्या है ना, यू हैव टू गो टू डिफरेंट प्लेसेस. जैसे वर्सोवा, यू नो, आराम नगर. हाँ. तो वहां पे जाते. अभी तो बहुत इजी हो गया यार. अभी तो लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए अभी तो घर से इंस्टाग्राम प्रोफाइल अपने बना लिए हैं, कहीं कहीं से कुछ खरीद के फॉलोअर भी बढ़ा लिए, फोटो डाल दिए, लोग देख के बुला लेंगे. उस टाइम पे ऐसा था नहीं. तो वी यूज्ड टू गो टू आराम नगर. हमको मिलता था ऑडिशन, हम जाते थे, नॉक करते थे, हम देखते थे सब सेम लॉट ऑफ एक्टर्स वहीं खड़े हैं बाहर, कि एक बंदा बाहर निकलेगा एंड बोलेगा ओके यू आर फिट, यू आर नॉट फिट, यू कम इनसाइड, यू गो आउट. यही होता था. तो हम जाते थे वहाँ एवरी डे. कभी आराम नगर जा रहे हैं, कभी वर्सोवा जा रहे हैं. तो वो सॉरी आराम नगर पार्ट 1 पार्ट 2 ऑफिशियली जी भी होता था. जा रहे हैं, वो बोलता था भाई तुम फिट हो, तुम नॉट फिट. तो जिसने फिट बोल दिया अंदर बैठ गया ऑडिशन में. ऑडिशन दिया, मिला तो मिला, नहीं मिला तो अगले दिन फिर बस्ता उठाओ, पहुंचो दूसरे ऑडिशन. तो ये पूरा एक प्रोसेस था एवरी डे का. बट वाज देयर एनी ऑडिशन जहाँ पे आपको ऐसा कुछ बोला गया? क्योंकि you know even when I speak to people like राजकुमार राव, आयुष्मान, कार्तिक, जो जेन्युइनली मेहनत करके आगे बढ़े हैं, जिनको ऑडिशंस बार-बार देना पड़ा है, वो भी ये बोलते हैं कि फिट अनफिट होता है. और कभी-कभी उनको ऐसी चीजें बोल दिया जाता है जिसका कोई मतलब ही नहीं होता. जैसे
I remember है, I know. Ayushmann said that somebody told him that his eyebrows are too bushy. That's why he was rejected. So ऐसा कुछ weird reasons दिया गया कभी? Which Weird reasons bothered you? एक तो बहुत ही क्लियरली याद है यार, मैं श्रीजी में था, डिटर्जेंट पाउडर का ऐड था, ठीक है, तो मैं पहुंचा, अब मुझे ना टेक्निकल उतना नहीं आता, तो अब जैसे दिस इज द कैमरा, तो दिस इज कैमरा लेफ्ट, दिस इज कैमरा राइट, ठीक है, तो उस टाइम पे इतने सारे स्क्रिप्ट में आ गए थे कि मैन 1 मैन 2 एंड देन यू से योर लाइंस, तो मेरे को पता ही नहीं कौन सा कहाँ है, मेरे को उतना टेक्निकल नॉलेज था नहीं, तो अब एक लेडी बैठी थी यहाँ पे मॉनिटर पे, तो मैं ऑडिशन दे रहा था, तो अब मैं बहुत कंफ्यूज हो गया कि यार कहाँ लुक दूँ मैं, लेफ्ट राइट कहाँ लुक दूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, और फिर एक बार किया तो पहले गाली से शुरुआत की उन्होंने, ठीक है, आई गॉट स्कैर्ड, यार एक लेडी ऐसा बोल रही मुझे और 25-30 लोग और बैठे पीछे ऑडिशन के लिए, मतलब ओके यार करता हूँ मैम, वापस करता हूँ, अगेन आई स्टार्टेड, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं लुक कहाँ दूँ, तो आते हैं कमेंट्स अजीब अजीब से आते हैं, अभी तो बता नहीं पाऊंगा यार, ऑफ कैमरा बताऊँ गाली वाली फिर बोलते हैं कि यार कहाँ देख रहा है आंखों से, महंगा है क्या ये वो, तो वो सब चीज़ें आपको बोली जाती हैं, एंड और भी बहुत चीज़ें बोली गई थी, अभी ऑन कैमरा नहीं बता पाऊंगा, वो भी फ्रस्ट्रेटेड होंगी इतना ऑडिशन ले लेके, तो वो आई गेस सारे एक्टर्स वो फेस करते ही हैं, जो आप बोल रहे हो कि हाँ कुछ बोल देंगे, तुम ऐसे हो तुम वैसे हो। But have you ever been locked for something and then immediately you heard that कि replace कर दिया या कुछ ऐसा? टीवी शो में हुआ है यार, क्या बात कर रहे हो, ये तो 2021 में हुआ था, हाँ मैंने तो बिग बॉस में बोल दिया, बता सकता हूँ इसके बारे में। हाँ प्लीज। तो देयर वाज अ शो कलर्स का, स्पाई बहू, ठीक है, अब स्पाई बहू शो था 2021 में, हाँ, तो अब मुझे प्रोडक्शन वालों ने डन कर दिया कि ओके अविनाश यू आर डूइंग द शो, चलो ओके, तो प्रॉपर उनका जो प्रोडक्शन का जो एग्रीमेंट होता है MOU वगैरह एंड ऑल दैट, उसको मैंने साइन वाइन करके डन कर लिया था, एंड उसके बाद थोड़ा डिले हो रहा था, किसी और लड़की के साथ मैं मॉक शूट कर रहा था, लाइक ओके फाइन, देन आई वाज लाइक अब कब करना है भाई, आपने मुझे ब्लॉक कर रखा है, मेरे डेट्स ब्लॉक कर रखे हैं, व्हेन आई विल शूट, सेट नहीं अभी थोड़ा सा पुश हो गया है, सेट ओके फाइन, मैं अपने दोस्तों के साथ ट्रैक पे जा रहा हूँ, तो मैं आके आप बताना कब करना है, तो मैं स्पीति वैली में था, ठीक है, स्पीति वैली यू नो ना, I know हिमाचल। वहाँ हूँ, वहाँ पे मुझे कॉल आया, अविनाश कम बैक, यू हैव टू डू योर मॉक शूट अगेन बिकॉज नाउ द गर्ल इज सना सैयद, तो आई सेड ओके फाइन, आई केम बैक, स्पीति वैली बीच में ट्रैक खत्म करके आई सेड ओके यार मेरे दोस्त समझो यार, वो मेरे को जाना है वापस, काम है, तो मैं वापस आया, मैंने मॉक शूट किया सना के साथ, तो अब मैंने किया एंड आई गेट टू नो कि अभी उसमें दूसरा एक्टर है, भाई तुम लोग तो बोले यार मैं डन हूँ, तुम्हें मेरे साथ मॉक शूट सिर्फ करना था, तो नहीं अभी चैनल का कॉल है, ये है ऐसा है वैसा है, एंड ये लास्ट मोमेंट पे आई सी समवन एल्स गॉट द पार्ट, हालांकि सहबान गॉट इट एंड ही इज वेरी गुड एक्टर यार। No, but you were called for the mock shoot, you did the mock shoot और उसके बाद आप रिप्लेस हुए या फिर? मॉक दे सेड कि पहले डन हो चुका था, ठीक है, पहले मैं दूसरी लड़की के साथ मॉक शूट किया था एंड देन आई वाज कॉल्ड फॉर दैट सेम शो का दूसरा मॉक शूट विद सना या हाँ, तो वो किया, लाइक यार बस एक प्रोटोकॉल है फॉलो कर रहे हैं, एंड देन आई गॉट टू नो समवन एल्स गॉट द पार्ट, तो वो ऐसी चीजें हो जाती हैं टीवी शोज में, बट ओके फाइन यार, जिसके नसीब में होता है उसको मिल गया। But have you ever had to deal with like bad people, badly behaved people on sets? Like आप जाते हो हर दिन का, वो आपका एक्चुअली जॉब है टेक्निकली, भाई you're meeting the same people, आप एक ही जगह पे बार बार जाते हो, अगर खुशी नहीं होती है ना, या फिर लोग अच्छे इज्जत से बात ना करे, तो एक पॉइंट के बाद आपका मन का जो इच्छा होता है ना वो चला जाता है, मतलब आई फील आई वुड बी इन अ प्लेस with low money but with immense respect than being in a place where the dignity is compromised for the sake of money and salary. मतलब that is what I'll tell you that this is kind of, see मेरा अलग विजन है इसमें, अगेन हर जगह अच्छे लोग नहीं मिलेंगे, ठीक है, some people are nice, some people are not nice, तुम अपना काम करने गए हो, do it, वहाँ पे अपना डिग्निटी मेंटेन करो, अपना काम करो, कोई बकवास कर रहा है वहीं पे उसको रिप्लाई बैक करो, साइड हो जाओ भाई, मुझे मेरा काम करने दो, ठीक है, अपना काम करो तरीके से, डोंट स्टॉप योरसेल्फ, somebody is trying to degrade you, डिग्रेड मत हो, सामने वाले को दे दो उसी वक्त कि भाई अपना काम कर, या बहन अपना काम कर, तुम जो भी हो गया आई डोंट केयर, सेल्फ रिस्पेक्ट हैज टू बी ऑन टॉप, एब्सोल्युटली, ठीक है, तो हुआ है कई जगह, कई बार मेरे को इसलिए बोल भी देते यार ये ऐसे बोल देता है वैसे, तो क्या बोल देता है, आई एम देयर टू डू माई जॉब,
एवरीबडी नोज मैं लिटरली सेट पे मेरा ऐसा रहता है, मैं सिर्फ आता हूँ अपना काम करके चला जाता हूँ. आई डोंट डू अ लॉट ऑफ एंटरटेनमेंट आफ्टर पैकअप. हो गया, डन. तो होता है, चीज़ें होंगी, कई लोग अच्छे मिलेंगे, कई लोग अपने आप को इतना तोप समझते हैं कि दे ट्राई टू डिग्रेड यू, दिखाते हैं कि आई एम दिस पावरफुल इन इंडस्ट्री. कुछ नहीं, काम करो, जाओ. बट डू यू फील लाइक पीपल लाइक यू, इसलिए मैंने बोला वो भी इंट्रोडक्शन में कि आपने अपने आप को नहीं खोया, राइट? ये इंडस्ट्री ऐसी है, स्पेशली द एक्टिंग वर्ल्ड, वहां पे हर पॉइंट पे बोला जाता है ये मत करो, ये करने से ये हो सकता है, ऐसे बिहेव मत करो, ऐसे ही बिहेव करना पड़ेगा, इवन इफ यू डोंट लाइक दिस पर्सन यू हैव टू स्माइल. लाइक दीज आर थिंग्स दैट आर टोल्ड टू मोस्ट पीपल. यू हैव नेवर बीन दैट पर्सन. You know, I'll tell you something now. The reason I started liking you the most on Big Boss is also because of this nature. जो मैंने आपको बोला भी है कि मुझे लगा right wrong, ठीक है, कहीं कहीं आप इंसान हो, आप कहीं पे right बोल रहे हो, wrong बोल रहे हो, तरीका गलत हो सकता है, right हो सकता है, कभी भी it balances out, but at the same time you're taking a stand for yourself. You know, there was not one point where you waited कि कोई और आके आपका लड़ाई लड़के जाए और आप खुद चुप बैठे हो. You know, the fact that you were not spineless on the show, I really liked it, and I said it out in the open because I really, you can be wrong sometimes, even my reactions are wrong, but at least I'm taking a stand. In the end I will required na, choose one side. Don't stick in between or मतलब hide मत हो. अपना बात रखो, सही हो सकता है, गलत हो सकता है, इंसान ही हो, ठीक है, बट बोलो तो सही, जो पॉइंट है वो रखो तो सही. तो दैट वाज माय होल आइडिया कि यार जो भी होगा आई से इट ऑन द फेस कि भाई ये है, दिस इज द थिंग, आई एम लाइकिंग दिस, आई एम नॉट लाइकिंग दिस. तो वो एक्चुअली लाइफ में भी वैसा ही हूँ मैं. बट यू आर ऑलवेज दिस पर्सन. एग्जैक्टली, मैं वही बोल रहा हूँ, ये मेरे को कई बार हार्म करता है ना, मैं सच बता रहा हूँ. मतलब इंडस्ट्री में जैसे तुम बोलो ना कि होना चाहिए कि नहीं हेलो हाय कैसे, यार नहीं हो पाता है. नहीं पसंद है तो नहीं पसंद है ना यार, अब जो पसंद है ठीक है. आई एम हियर टू वर्क यार, आई जस्ट फोकस ऑन माय वर्क, आई फोकस टू नो अपने स्किल्स ऐड ऑन करूँ, जो मेरा काम है क्रिएटिविटी वो करूँ. आई कांट डू दैट बूट लेके या यू नो कि काम के लिए कुछ ये कर लिया. या द फेक एयर किसेस, ओहो समवेयर, मतलब अपने आप को मिरर में देखो, यू वोंट फील नाइस अबाउट योरसेल्फ. बट यू नो, जो लोग ऐसे हैं ना, उनको हमेशा लेबल किया जाता है कि रूड है, ब्रैश है, डिफिकल्ट है, यार ये बहुत बदतमीजी कर देता है. लोग नहीं देखते, कभी कभी क्या होता है ना, I understand that as a person, as a human being, sometimes our reactions are a little over, but our reactions can be over, but sometimes people forget to see the action. That is so wrong, I feel, right? Yeah, that happens. And in your case also I know it happens because that has happened on Big Boss, right? People forgot what has triggered your reaction and they kept on saying कि अरे बदतमीज है, बदतमीज है, बदतमीज है. अरे भाई बदतमीजी क्यों किया? अचानक से उठ के तो बदतमीजी किसी ने नहीं की ना. आज अभी तो खुल के बोल सकते हो, भैया मेरा चैनल है, मैं जो मना है बोलूं. बिल्कुल बोलो यार. बट हैव यू ऑलवेज फेल्ट दिस दैट ये जो लेबल्स है कि रूड है, ब्रैश है, इवन ड्यूरिंग टीवी डेज, बिकॉज़ यू सेड दैट यू आर नॉट पार्टिंग विद योर colleagues and you are not one of those कि हर चीज में फ्रेंडली बैंटर आप अपना काम करते थे एंड चले जाते थे. मोस्ट पीपल who do that, they are actually considered like unfriendly, like क्या है यार, unsocial, rude है. ऐसा हुआ है? हुआ तो है, बहुत हुआ है. लाइक एज यू सेड कि पार्टीज पहले करता था. आफ्टर 2022 आई हैव स्टॉप्ड डूइंग अ लॉट ऑफ पार्टीज एंड मैं थोड़ा मतलब एंटी सोशल बोल सकते हो. मैं नहीं रह पाता हूँ यार, मेरे को नहीं हो पाता है बिकॉज ambivert. I think you're an ambivert. हम बोल सकते हो. Ambivert is somebody who's selectively social. करेक्ट वही मिक्स्ड का. जहाँ पे अपने लोग हैं सोशल, जहाँ पे लोग नहीं है. The way it is कि हाँ मुझे ये पसंद है तो मैं इनके साथ पसंद है तो नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि I dislike them, I do want, okay neutral, bye, exactly man, वैसा वाला सीन है. तो हाँ थोड़ा एंटी सोशल रहता हूँ because I stay in my routine यार. मैं मॉर्निंग उठूंगा, अपना जिम जाऊंगा, अपना अभी MMA कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, then I'm adding my skills, I'm doing my acting workshops, next projects are lined up, so I'm focusing on that. तो ये हमेशा से मेरा रहा है. तो उसकी वजह से हाँ मैं कई बार लोगों के पार्टीज में भी नहीं पहुंच पाता हूँ एंड कई बार जैसे बहुत लोग पॉडकास्ट में बुला रहे हैं तो उनके यहाँ भी नहीं जा पा रहा हूँ. इट्स बिकॉज आई डोंट वांट टू, वेरी सिंपल. इट्स नॉट लाइक कि अभी वो बुला रहे हैं तो मैं उनको अवॉइड कर रहा हूँ. अवॉइड नहीं, आई जस्ट डोंट वांट टू डू दैट बिकॉज अभी वो मुझे नहीं करना है. एंड मुझे था कि मैं नयन के पॉडकास्ट में, आई एम हियर राइट नाउ. सो इट्स वेरी सिंपल यार. ऐसा नहीं है कि मैं
जानबूझ के लोगों से नहीं मिलता हूँ. आई एम इन माई रूटीन, आई एम इन माई शेड्यूल, एंड जो मुझे करना हो रहा है, मतलब करना होता है वो मैं कर रहा हूँ. दैट्स इट. ऐसा कुछ डिसलाइक नहीं है भाई किसी के लिए, बस अपने लिए मैं थोड़ा ज्यादा सोचता हूँ और अपने रूटीन के बारे में. बट आज के जमाने में अपने लिए हाँ. सोचना इज नॉट अ पाप, इट्स द मोस्ट नहीं, इम्पोर्टेंट वो थिंग. बोलने दो जो लोग बोल रहे हैं. Because कोई और Focus on सोचेगा नहीं. yourself. अपनी इंडिविजुअलिटी, अपनी आइडेंटिटी बनाओ. That's nothing wrong, man. You know, regardless of your alliances, friendships, your networking, मम्मी पापा के अलावा अपने लोग एक्चुअली नहीं है. लाइक मम डैड एंड मे बी योर सिबलिंग, that's about it. I feel like the kind of selflessness that they have with their love, you will not get it otherwise. आज के जमाने में True. प्यार, romance is also not selfless at all. Everything is like comes with हो conditions. जाता. But right? I'm blessed. मैं ये बोल सकता हूँ यार, मेरे जो स्कूल फ्रेंड्स हैं, हाँ. I'm blessed to have those school friends. अभी भी आप लोग ट्रैक वैक पे जाते रहते हो. हम ट्रैक पे भी जाते रहते हैं, एंड मैं अपने स्कूल फ्रेंड से साल में 1 से 2 बार मिलता ही हूँ. एंड वी ऑल मीट टुगेदर. अभी तो सबकी शादियां हो रही हैं, तो एक बार मिलना हो ही जा रहा है. एंड आई एम ब्लेस्ड टू हैव दोस फ्रेंड्स, those who have seen me from zero and they have been supporting me when I was nothing. And अभी भी same banter से मिलते हैं हम, same energies के साथ, same vibe के साथ. So I guess family तो obviously होती है, और I'm glad कि मेरे जो कुछ real friends हैं from school time, they are still with me. Fab. हाँ. No, those are the people who matter. Real friends, एक man. छोटा सा Yeah. सर्कल होता है, वही मैटर करता है. उसके बाद Exactly. हाँ. बात कोई नहीं मैटर करता. हाँ. You know, when you talk about labels, another thing that I took a very strong stand on was the label of a womanizer attached to you. कि कोई लड़की आके आपके साथ फ्लर्ट करे और फिर उसी को टर्न कर दे. And I'm sorry, Kashish, I don't like it. And in my interview also, I think she got to know that I didn't like it so much. And it's okay, yaar. I didn't agree with it. I am a feminist. Okay. अगर कोई लड़का वैसा करता तो I would have said the same thing against that man. But just because I'm a feminist doesn't make it right when a woman does it, right? Initially it was fun and friendly banter, जो दोनों साइड से थोड़ा होता था, primarily from her side. But then it eventually went into an entire stream of vengeance जहाँ पे आपको, and it's very easy. आज के जमाने में ये सीन सो मेनी केसेस कि जहाँ पे कोई भी किसी पे भी उठ के कर देता है. ना ऐसा नहीं है कि सारे लड़कियां करती, बट कुछ लड़कियां करती है. इवन women have to understand that there are certain women who are pulling down the whole label of feminism. You are away from the world. आपको नहीं पता था कि बाहर ये चीज कैसे दिखेगा. What were the things that went into your mind? How did you process it? कैसे डील किया वो जो 2-3 दिन थे जहाँ पे you also went into a complete shell completely? To be honest, that was a difficult part यार. ठीक है, because समझ नहीं आ रहा था कि what's going on. अभी देखो, अभी खत्म हो गया, तो मैं उस चीज को उतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा. एंड डोंट हैव एनी मतलब हार्ड फीलिंग्स फॉर एनीबॉडी राइट नाउ. सी द पॉइंट इज, वो एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो गया था वहाँ पे कि बहुत अजीब तरीके से ट्रैप कर दिया गया था. बट कहीं ना कहीं आई हैड दैट फेथ कि यार चलो जो भी है वो कैमरास पे तो है, कैमरास पे है, माइक्स हैं, तो मुझे पता है एग्जैक्टली जो मैंने की. बट हाउ डू आई मेक देम बिलीव, है ना. वो सिचुएशन प्रॉब्लम थी कि यार मैं बताऊं कैसे, क्योंकि मैं बताऊंगा तो मेरी बात पे क्यों भरोसा करेंगे. अनलेस आई डोंट हैव दैट वीडियो, अनलेस आई डोंट हैव दैट क्लिप, मैं बताऊं कैसे लोगों को. तो वो थैंक गॉड बिग बॉस ने खुद ही दिखा दिया. आई एम ग्लैड कि वो हुआ. एंड सी क्या होता है ना, एक चीज मैं और बोलना चाहता हूँ कि right now what I feel in the society, being a man is very tough, man. ठीक है. Sometimes क्या होता है, if you get any allegations, कुछ बोल दिया तुम्हारे बारे में, ठीक है, वो सीधा एक न्यूज़ बन जाएगा, सीधा हेडलाइंस बन जाएंगी, people will start making it viral, ठीक है. एंड उसी चीज़ के अगेंस्ट अगर एक लड़का उसके अगेंस्ट कुछ बोल देता है कि यार ये तो गलत है, ऐसा क्यों किया गया, तो फिर वो भी आता है कि ओ देखो अभी अपने आप को बचाने के लिए भी कर रहे हैं. एंड कई बार क्या होता है, हम नहीं बोलते हैं, कई बार हमारे फैंस बोल देते हैं कि यार तुम गलत कर रहे हो, ऐसा है, ऐसा नहीं है, ये तुम इसके बारे में गलत चीज़ें बोल रहे हो. एंड इवन इफ आई अप्रिशिएट माई फैंस कि चलो थैंक यू सो मच फॉर डिफेंडिंग मी, यार तुम लोगों ने अच्छा सपोर्ट किया, उस पर भी अलग कॉमेंट्स आ जाते हैं कि ओ देखो ये अपने फैंस को पुश कर रहा है, उनको अपलिफ्ट कर रहा है इन सब चीज़ों को बोलने के लिए. मैं कोई डिमीन करने के लिए अपलिफ्ट नहीं कर रहा हूँ. उन्होंने जो मुझे डिफेंड किया उन चीज़ों के लिए, मैं उसके लिए थैंक यू बोल रहा हूँ अपने फैंस को. तो अभी रिक्वायरमेंट क्या होगी कि अगर तुम बीइंग अ मैन यू जस्ट हैव टू स्टे साइलेंट, कुछ मत बोलो. हाँ,
तुम बोलोगे तो भी तुमको बोलेंगे देखो ऐसे बोल रहे हैं, नहीं बोलोगे तो बोलो देखो बोल नहीं रहा है मतलब बात में कुछ गलत है. सो इट फेल्ट वेरी बैड. ये सिचुएशन मतलब बिग बॉस के घर में तो चलो ओके कैमरा से वहां तो सब क्लियर हो गया, सबने देख लिया. इनफैक्ट अभी तुम बोल रहे थे कशिश को सॉरी, बट उसने खुद सॉरी वॉरी बोल दिया था, तो अभी उसको कुछ मत बोलो. और टास्क में उसने सॉरी बोल दिया था, सो दैट्स ओके. अब सॉरी बोल दिया तो फिर उससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है. तो वो ओके है. बाहर बाहर की दुनिया में ऐसा हो तो क्या करेंगे. This was inside the house. Did she say sorry to you? हाँ टास्क में. Did you come out and see her interviews? हाँ मैंने देखा. सी मैं उस पे भी नहीं पढ़ना चाहूंगा यार. Okay, देखो, okay, it's okay. नहीं, Good ना, boy. You're a very See, good मैं- boy. अब देखो मैं घर की चीजों को घर के अंदर ही रखा हूँ, ठीक है. मैंने बाहर आके किसी के बारे में कुछ नहीं बोला है, That's true. है ना. I agree. किसी के बारे में कभी कुछ बुरा नहीं बोला है, बिकॉज जो घर के अंदर हो गया, ठीक है. इनफैक्ट वो अगर घर के अंदर क्लोज नहीं होता मैटर, तुम अभी कुछ अलग बोलता, बट उसने खुद ही टास्क हाँ. में शर्ट वर्ट पे, वो एक टास्क था शर्ट पे सॉरी वॉरी लिख के उसने बोल दिया था कि आई शुड नॉट हैव ओवर रिएक्टेड. जब उसने खुद ही बोल दिया तो मैं उसको स्ट्रेच नहीं कर रहा हूँ, ठीक है. एंड मैंने हमेशा घर में जो भी नेगेटिव चीजें हुई मैंने वही ड्रॉप कर दी, बाहर से पॉजिटिविटी लेके. मैंने किसी के बारे में कुछ नहीं बोला. बट येस आई सॉ अ लॉट ऑफ क्लिप्स जो बाहर आके भी गलत चीजें बोल रहे हैं. स्पेशली मैंने मेरे बारे में जो देखे गलत चीजें बोल रहे हैं, और वही चीजें जिन्होंने अंदर की जिसके लिए उन्होंने सॉरी भी बोला. कुछ लोगों ने जिन लोगों ने अंदर चीजें की और अंदर सॉर्ट हो गई थी वो बाहर आके फिर से उसको उठाया. तो आई फील यार दिस इज रॉन्ग. ये मतलब क्या रिक्वायर्ड है फिर आपने घर में इतना किया ही क्यों, राइट. But do you sometimes feel like वो बहुत ही एक lonely space हो जाता है बिग बॉस के अंदर? Like there was a point जहाँ पे apart from you there was nobody visible on this show, and I'm saying it purely as an audience, and at that point I'm telling you मेरा ऐसा कुछ alliance, because I didn't know all of you, let's be very clear. yes, मेरा yes. कोई personal relationship किसी के साथ भी नहीं था whoever went in this season of Big Boss, so it was purely basis of what I was watching. Till that point even I didn't know who I like more, because it was very early. There was a point of time you were completely ruling the show, and then suddenly there was a dip after all these allegations XYZ. Do you feel it affected your game in some way? सी नयन वहाँ मैं क्या बोलूँगा, सारे कंटेस्टेंट थे, सब कंपटीशन में थे. तो क्या होता है कई बार व्हेन यू आर राइजिंग, ठीक है, तो वो होगा ना यार, वहाँ पे कंपटीशन है. सो दे माइट टीम अप अगेंस्ट यू, तुमको थोड़ा डाउन करें, खुद ऊपर चढ़ें, एंड दैट इज द पार्ट ऑफ दैट गेम है, ठीक है. Yeah. तो इसमें कुछ बुरा नहीं है कि उन्होंने मुझे टीम अप करके कुछ करने की कोशिश की. दैट इज ओके, दैट्स अ गेम, वो सब वही करने हैं वहाँ पे. सो ऑब्वियसली उनको दिखा कि यार टेकिंग ऑन द शो, तो थोड़ा टीम अप हो गया मेरे अगेंस्ट. कभी पूरा घर अगेंस्ट हो गया, कभी एक ग्रुप अलग से कुछ प्लान आउट करके आया, देन अगेन आई हैड टू काउंटर बैक. तो वो एक पार्ट ऑफ द गेम है, सो दैट्स ओके, वो होता है. And you said that बहुत सारी चीजें हो रही है जहाँ पे even after coming out of the house there are so many fandoms, fan wars, there are so many fan wars actually happening at this point. How do you react to these kind of things that are happening? Like how? सी नयन, पहले तो मैं ये बोलूँगा, मैं यही बोलता था यार कि आई डोंट वांट कि इतना ज़्यादा फैंडम वॉर्स हो. बट अभी क्या होता है ना, सी मैं एक बार मैंने बोल दिया है, ठीक है, कि गाइज ये सब मत करो. एंड प्लस आई कैन अश्योर यू टिल द टाइम somebody doesn't poke या some fandom doesn't poke, आई डोंट थिंक मेरे फैंस या जो मेरे लोग हैं वो कुछ ऐसा कुछ करते हैं. सो इट्स ऑलवेज लाइक somebody comes with that poking वाला थिंग. एंड एक बार ओके है यार, दो बार ओके, अब मैं बार बार कैसे रोक, है ना. If you are only coming out and saying stupid things about me on social media, okay, I won't react. Fans are reacting, ठीक है. So अब मैं एक बार उनको रोक सकता हूँ, दो बार रोक सकता हूँ, but if you are doing that बार बार Regularly, है yeah. ना, तो be ready to get it also. हाँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ उनको कि जाके कुछ demeaning चीजें करो, but if you stop doing that, they will also stop doing it. But are you aware of the things that are being said about you at different parties? If you don't know, let me tell you that I have heard something from one of the parties where you were being discussed, and not discussed in a very nice way. We were at a different party together where everything was so happy and so nice, because we were
कुछ डिस्कशन ही नहीं हो रहा था about anybody else. We were just Hmm. happy and we Yeah, were exactly. discussing Just- life. It was we were and- enjoying that yeah, part, and yes. honestly उस पार्टी में I don't think किसी ने किसी और के बारे में कोई बात भी की. It was like just it क्यों was like होंगे तो हमने तो बस चिल किया है yeah, मतलब actually अपना, we were like in one corner, whatever. chilling, yes. But I want to know that there are also parties where things are being said about you, You've about heard? your personality, Oh. about your character. Does it? You also must have heard. If it's come to me, I was not at the party, but I know that a lot of things are being said about you at those parties because a lot of people are writing also, right? How do you react to that? And see, I know अभी रिसेंटली बहुत पार्टीज हो रही हैं जहाँ पे जो आप बोल रहे हो मुझे भी सुनाई दिया, जैसे आपको सुनाई दिया, आपको तो पता चल गया एनीवे, मुझे थ्रू पता चला कि ये सब बैठ के ग्रुपिज्म बातें कर रहे थे तुम्हारे बारे में. तो सी इट्स नाइस कि उनके पास एक टॉपिक है अविनाश एंड दे आर हैविंग दैट कॉन्वर्सेशन एंड उनके पास कुछ अच्छा टॉपिक और भी होना चाहिए बट दे आर ओनली टॉकिंग अबाउट मी. तो आई गेस ठीक है, उनकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस है मेरी, दैट्स व्हाई दे आर टॉकिंग अबाउट मी एंड व्हाट आई कैन से यार, पार्टी में गए तो एंजॉय करना चाहिए, वहाँ पे भी यही सब चीज़ें कर रहे हैं. इट्स completely Do you think it's also to get a reaction from you? yeah, that's true, they want my reaction to be honest कि मैं react करूँ कि मुझे पता चला मेरे पार्टी में ये चीज़ें कर रहे हो, तुम लोग फोटोज डाले हो, I got to know and ये सब हुआ था पार्टी में. ओके कर लो यार. See, I'm focusing on my work, I'm focusing on my projects, upcoming projects. I don't need to go in parties and discuss these things. And जैसे मैंने बोला मैं पार्टीज में जाता भी नहीं. That's true. तो अब वो वहाँ बैठ के कुछ कर रहे हैं तो कर लें यार, बिकॉज मैं पार्टीज करने नहीं आया हूँ यार बॉम्बे. कुछ पार्टीज में जा रहा हूँ जहाँ मुझे लगता है जाना चाहिए. आई कांट गो टू एवरी पार्टी एंड टॉक ये सब क्या बोलते हैं इसको, Small talk. small talks. I don't do that. But if somebody wants to have a small talk about me, then enjoy. Then you're man. free Enjoy, to do man. it. You are free to do it. Please enjoy that. Your bond Uh. with two friends Uh. has stayed intact, Yes. which is Isha and Vivian. और अभी आप लोग मिले थे, हाँ, right? अभी Few भी, days हाँ, yes, yes, ago. yes. So basically, these are two people you have maintained relationships with, and you're friendly with. Am I right? Correct. Okay, so I was surprised. I'm actually calling somebody, and this is a part of our plan. Let's see. What? Yes. Whom you are calling? I'm calling somebody who doesn't pick up. That's the worst. You're calling whom? I'm calling who? Hello? G. You know you are live on the interview now, Isha. Cause we love you. Why would you do this to me? We love you. We really do. We as in, you really want to know we as in who? It's the Avisha fan club, jiska I'm soon going to be like a CEO. You're going to be the CEO. Yeah. You should be the CEO. You have to tell me one thing. What is Avinash's most lovable and most annoying quality? And then we are going to ask him the same. ये मेरा क्यों इंटरव्यू हो रहा है? Where are you? Is this my interview? क्योंकि ईशा जी आप हमारे साथ आज आने वाली थी और आप नहीं आई हो and you owe me this. So can you please tell me what is his? अच्छा चलो, what is his most annoying habit? What do you think is your most annoying habit? Avinash's annoying habit. जी. I don't think so. There's anything annoying about him. ओह वाह दोस्ती, ये जो No, आप honestly, I think there's nothing annoying. Yeah, you're going correct, Isha. Yeah, I don't think so. There's anything annoying about him. what is the most lovable quality? चलो. Say all of it. Too many, but to See? name a few, I think what I really like about him is that he's a very good friend. That's true. You know, he's there for his people. That's He's true. disciplined. I like that about him. I do. And you can annoy him as much as you want, but he will not get annoyed. That's true. But only selectively, like only select people who he has Selected few allowed people, yeah. in that circle. I Yeah. don't care about others, but I know I annoy him and he does not get trouble. How So, yeah, sweet. that's- Now you have to. We have already discussed our interview, so now It's you're on. his interview and you are. No, wait. Our interview is in both of you and me. That better be the first interview that you both do So together. Avinash is sitting right in front of you. Of I course am he here is. only. Oh my He just said कि it's a God. surprise and I'm I calling thought- somebody and he called you. Oh my God, I'm so confused. Hi, Avi. Yeah, hi. I thought you were just doing something
asking me and then you'll ask him. Oh God, I was just so confused. Isha, Hi, how are you, Mama? how are you? How are I'm you? good. I'm good. How are you? I'm very good. Chalo, cool. I'll see you soon. See you And, very soon. and both of you better see me very, very soon. He's met me. He's kept his word. He's gone one He's step. a good boy. Yeah, you are a I very know. bad girl. No, you are not. You are not. We love you. Thank you, by the way. I think that you know what is annoying about him? Yeah. Uh-uh. His endless love for Indian food, which is very nice. Oh. But when you're traveling with him, it's like he only wants Indian food. I hate Yeah. people who travel to different countries and want Indian food. I can't change myself. So that's nice. We got into an Indian restaurant, by the way. We are shooting in an Indian restaurant. Yeah, now next time we three are doing the interview, we'll do it here over Indian food. Done. Do you like Okay, Indian done, food? done. Chalo, Done. done. Indian food Dal always, chawal man. for life. Chalo, done. Always, man. Done. And Always. I'm calling you right after. Thank you, by the way. Chalo, keep We it love there. you. Bye, bye, bye. I love you guys. Bye, bye, Avi. Bye, bye, Ish. Bye. 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 Take care, guys. Have Yes, fun. bye. Nice. What a surprise. Yeah. Surprise, guys. Surprise. Not so much, but see, there's love. मुझे लगता है कि 10 लोगों के साथ दोस्ती, मैंने एक टाइम था ना जिंदगी में, मैंने 10 लोगों से दोस्ती मेंटेन की, पर I was friendly. I'm a friendly person with everybody. I'm not friends with everybody. Okay. Yeah, that's so that okay. people don't understand in this part of the industry. But I've slowly come to realize this, that 10 लोगों से दोस्ती करना important नहीं है, वो 2 लोग जो आपके साथ जिंदगी भर रहे वो important है. Yeah, that's And I true. think you've always had that, right? Even from Big Boss, like Vivian and Isha have been your constants. Yeah, I'm only in touch with these two after Big Boss. And you don't meet anybody else. No, I don't meet. But what is it about these two that really connected you as a human being to them? See, I guess I have that. मतलब flaunt नहीं कर रहा हूँ. I have that ability to judge people. थोड़ा बहुत कि यार who is actually real and who is not. ठीक है. तो बिग बॉस इज द बेस्ट प्लेस. वहाँ तो 24 घंटे हो सबके साथ. सबको मैं देख रहा था, एनालाइज कर रहा था. तो समझ में आ गया था कि कौन साथ देगा कौन नहीं देगा. टू बी ऑनेस्ट, घर के बाहर आई थॉट आई विल मीट एवरीबॉडी बिकॉज वो गेम शो है. उसके बाद मैं सबसे ओके रहूंगा. एंड मैंने बोला भी कि मैं सबसे ओके रहूंगा यार, मैं सबसे you did. करूंगा. आई सेड दैट. बट जब मैं बाहर आया एंड आई सॉ द इंटरव्यूज एंड पीपल टोल्ड मी, एंड स्टिल एज यू सेड, पार्टियों में मिलके क्या क्या बातें कर रहा है, लाइक यार मैं किसी के बारे में कुछ बात नहीं कर रहा हूँ. ठीक है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी से. और जो घर के अंदर था मैं घर में छोड़ दिया. लोग बाहर आके भी वही चीजें बोल रहे हैं. लाइक बाहर आने के बाद वही चीजें बोल रहे हैं, बिचिंग कर रहे हैं, पीठ पीछे उठपटांग चीजें बोल रहे हैं. लाइक लीव. Yeah. I don't want to meet a lot of people after Big Boss. Self-respect is on top. ठीक है, I don't care about anybody. जिन लोगों ने अच्छे से घर के अंदर बनाया और बाहर भी अच्छे हैं, I'm meeting those people. Yeah. I don't want to meet them and उनसे मिलके पार्टियों में जाऊं और उनके पार्टीज में जाऊं. I don't want to do that. Maybe people want to do that because उनको पता है अभी बहुत सारे Big Boss वाले एक जगह मिलेंगे तो हाइप मिल जाएगा सोशल मीडिया पे फोटोज. I don't want to do that, man. But you've been invited to all the other parties Yeah. and chose not to go. Yes, I choose not to go. वो फेक पार्टीज जाके बस, एंड मिलते ही आई एम टेलिंग यू, मिलेंगे और मिलते ही मोबाइल निकालेंगे, हे व्हाट्स अप, एंड दे विल जस्ट पुट इट ऑन सोशल मीडिया सो दैट दे गेट टैग्ड ऑन सोशल मीडिया एंड थोड़ा ट्रेंड होना स्टार्ट हो जाए कि चलो मिल लिया, विनाश से मिल लिया. आई डोंट वांट टू डू दैट, मैन. जो एक्चुअल में बाहर आके भी एग्जैक्टली वैसे हैं. आई एम मीटिंग दोस पीपल एंड टू बी ऑनेस्ट मैं इन्हीं दोनों से मिला. मतलब मैं खुद से जाके जो मिला हूँ, ईशा, विविन, दैट्स इट. Not meeting any other people from Big Boss. Let's just say it, no? That you and Isha are doing a lot of music videos. Why don't you say Yes. it? Yeah, Yes, say we it. are doing Go ahead. Go ahead means what? Everybody knows it. हम लोगों ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कर लिए हैं साथ में, एंड बहुत अच्छा लाइनअप है. एंड आई एम ग्लैड कि वो सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सब अलाइंड हम लोगों ने ऐसे किए हैं कि बैक टू बैक आएंगे. एंड प्लस मेरे कुछ इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स भी लाइंड अप हैं एंड वो उस पर मैं वर्क कर रहा हूँ. एंड you will see a really good यार ज़्यादा नहीं बोलना चाहता मैं बोल दो. यार. see जो थाईलैंड में शूट हुआ है, that's a very stylish song. and जो अभी एक टी सीरीज वाला सॉन्ग अभी जो पहले आएगा, extremely happy go peppy song. you will love it, man. you will love it. मैंने तो प्रीव्यू देख लिया है तो मुझे तो पता है वो कैसा है. and will come for the promotion of that song for sure. ये रिकॉर्ड कीजिए because done कर लो. I will drag both of you to court. एंड ये भी बोलता हूँ कि बाकी के यहाँ जाऊँ नहीं जाऊँ,
I'll come to your podcast. I'll I come to your love you. podcast. I love you. No, बाकियों का नहीं पता. you know, मतलब ये टाइम लगा, okay, but मुझे ये पता है कि the warmth has not changed from the time I met you at that party until now. Whenever we've spoken, whenever I've spoken to Isha तो I have troubled. मैं उसको मैं पूछूं what are the most annoying habits about me, she'll give a list. Because but it's also annoying about her. I think she's very forgetful. I'm telling you in half an hour when we can do this interview, and then she'll go गायब. And I'm like, your fans are killing me. आपने अविशा बोल के इतना हमको तरसाया, आप कर तो लो because you guys have I said you have genuine committed love. them. Yeah. And they feel like, oh, आपका इंटरव्यू उनके साथ बहुत अच्छा है, which I know कोई it नहीं, will be वो great. जब हम साथ में प्रोजेक्ट करेंगे तब करेंगे. Done. हाँ. Done. But tell me something. Everybody thought on the show, including me, that you guys are a little beyond friends, which you have also accepted. That you're not friends. You're नहीं, more नहीं, than नहीं. friends. I'll tell you, I didn't say that. I said कि एक टाइम पे वैसा एक फील आ गया था. But we stopped it right there. Why? That was not the place to have those kind of feelings and then go on in the show. बहुत difficult हो जाता. And because वहाँ पे ना मतलब कहीं ना कहीं you will be in doubt Yeah. कि यार is this for camera, is this for the game. It was better to stop it right there and just continue as friend and focus on the game. And right now also we are just good friends and we are just focusing on ourselves, our own thing. Like you're saying abhi Avisha fans, so I'm glad there's a fandom Avisha and who love us together. They want to see us together on screen. But on the other hand, there are Isha's fan, there are Avinash's Yeah, fan. absolutely. They want to see us as Yeah. individuals. Right? Your fans have actually been telling me that we want to see his, we are tired of watching the Big Boss thing. We need to know his story. Which Yeah. the day I met you at the finale, when we were talking, I said that listen, this is a 4-minute interview. I want to do a Yeah, longer we'll do a one, and I proper want to podcast, yes. and I wanted to do about your life, which is the major part of this podcast also, because I want to show it to people who genuinely have dreams in their eyes, man. Tomorrow they'll look at you and think they can also do it, which is the best part. Naini, I'm glad that I get a lot of messages that they have been feeling very motivational. Yeah. They feel very inspired by my thoughts. Yeah. And I don't know what clicked and उनको क्या अच्छा लगा है. So I'm glad that I'm able to inspire them and to do something more in life and be passionate about whatever they are doing. Yeah. है ना? Because मैं कई बार इस चीज पे believe करता हूँ. Like I have a motto in my life, H2D2. I'll tell you H2D2. That is my theory. That is honesty, hard work, discipline, and dedication. If you follow these 4 things, trust me, Nayan, you will find success. That's true. Rest of the things matter ही नहीं करती है. H2D2. If you are following this, you will find success. And I don't know how I got this thing. कि मैं खुद भी एक बार सोचा था कि यार ये मैं क्या बताऊं लोगों को. When people ask me this question, that what is the motto of your life? How do you handle your life? So I got this formula H2D2. And अब ये मेरे दिमाग में इतना बैठ गया है कि I actually follow these 4 things. And rest of the things I really don't care about. Results तो मैं सोचता ही नहीं हूँ क्या होने वाला है. I just focus on these 4 things and I do my job. Fab. With Vivian also, you've had a very brotherly relationship, yes, you yes. know. Today it has evolved into a space where, there were in between ऐसा भी हुआ जहाँ पे थोड़ा इधर उधर हो रहा था आप दोनों के रिश्ते, but दोनों ने वो मेंटेन किया Yeah, see, till that the is- end कि नो भाई होता है ही तो है। भाई है. Yes, see, उस घर में ना relationships are different, ठीक है? Competition is different. And ये आपको 2 अलग अलग sides को अलग अलग तरीके से ही देखना पड़ेगा, right? At the end, that's a competition, right? Yeah. हम स्कूल में भी competition That's true. करते थे, तो होता था ना कि मैं ब्लू हाउस में हूँ, सामने वाला येलो हाउस में है, तो हम एक दूसरे के साथ Which house were you in? I was in blue house. I can't tell you. हे भगवान. Listen, तो अब मेरे दोस्त हैं. I'm just giving a very good example so that you can relate. मैं ब्लू हाउस में हूँ, सामने वाला रेड हाउस में है. We are playing a cricket match. So what? हम enemy story हो Competing, गए. yeah, we are competing. competing. But break time after that we are friends, right? So in Big Boss house, अगर मेरा वहाँ पे किसी से दोस्ती हुआ है, but at the same time I'm in the competition also. I have to think about the competition also. So उन दोनों को ना अलग अलग रख के आप गेम में आगे बढ़ो. अब उस चीज को वही होता है, वहां पे लोग वहां इस चीज को बोलेंगे, ओ माय गॉड ये ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, वो कर दिया. बट मीनवाइल मी एंड माय
friend. We both are understanding what it is, why it is. बाकी को क्या लेना देना है, वो उससे अपना एक थ्योरी बना लेंगे और कुछ लोग फिर बैठ जाएंगे वहाँ पे सिंपैथी कार्ड खेलने, कोई विक्टिम कार्ड खेलने. लाइक भाई ये दो चीज तो मेरी लाइफ में मुझे कभी करना ही नहीं, चाहे वो रियलिटी शो हो चाहे वो रियल लाइफ हो. ये कार्ड वार्ड खेलना आई रियली कांट डू दैट मैन. I feel it's very childish. Yeah, that's true. But it's very much visible on screen when you play those cards, man. मतलब whatever card यार, इतना मतलब वहाँ तो sympathy card और victim card, senior card, woman card क्या नहीं खेला गया. And मैं अब बाहर आके मैं as an audience देखता हूँ, I'm like it's so much visible. What card you open? But audience also Why, understood it. It's not like they didn't understand. When you guys met, what were the things you guys spoke about? ये तो सब जानना चाहते हैं. I also wanted to be a fly on that wall. When me, Vivian, All and three of Isha, you, yeah. हम लोग जब मिले Yeah, अभी yeah, मिले. yeah. See, we were discussing projects to be honest, and कुछ projects हैं तो हम वो डिस्कस कर रहे थे फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड उसके बाद हम वही घर की चीज़ें डिस्कस कर रहे थे कि क्या क्या हुआ था एंड क्या क्या चीज़ें हमने टैकल की. एंड बाहर आने के बाद वो कैसे चेंज हो गए, जो अंदर हमको ये सब बोलते थे बाहर आके अभी ऐसा बोल रहे हैं. सम मीडिया पर्सन ऑल्सो जो I was whatever my stand was when you guys were inside. It is still the same, and it will remain the same. अरे I'm telling you वो. But you know, I didn't. They asked me to go, but I didn't go this time because last year I'm genuinely saying this out of honesty that Ankita Lokhande is like my sister. She's like my Rakhi sister. She was on the show. You cannot expect me not to be biased. But my point of argument was, if you are like my brother before you go to the show, of course I'm going to be biased towards you. I have a reason. What did the others have? Everybody that goes inside the house likes somebody or dislikes somebody, all the media people. And it's not about paid, ye, wo, falana, chodo, but normally over the years also, somebody likes somebody and somebody doesn't like somebody. So there is of course a favorite card that is played every year. I got pulled out because people knew and I was honest about my relationship with Ankita, which is so stupid. This year I wanted to know whose relationship, who had what relationship with which contestant, कि जिसके वजह से इतना unfair हुआ. दूसरों का मैं क्या बोलूँ, मैं अपना बता देता हूँ. एज यू नो, मैं वेरी एंटी सोशल पर्सन, मतलब हो चुका हूँ आजकल मैं लाइफ में. तो क्योंकि मैं पार्टीज में नहीं जाता हूँ, क्योंकि मेरा ज़्यादा फ़ोन कॉल नहीं होता, हमारी भी ज़्यादा उतनी बात, बट वी हैड अ कन्वर्सेशन कि आई विल कम. तो आई कांट चिट चैट ऑन व्हाट्सएप ऑल्सो, आई कांट गिव देम इंटरव्यूज, आई कांट गो मतलब यू नो कि अभी मेरा ये इवेंट होता है तो आ जाओ. आई कांट डू दैट. तो मेरी कोई पर्सनल बॉन्डिंग विथ लॉट ऑफ जर्नलिस्ट नहीं है, ठीक है. एंड मेरे को लगता भी नहीं है मैं ज़्यादा बना पाऊंगा बिकॉज दैट इज नॉट माई जॉब. ठीक है, हालांकि वो कुछ लोग आजकल करते हैं, बट आई डोंट हैव, मतलब आई एम वेरी न्यूट्रल विद दैट कि हाँ यार दिस इज द थिंग, माय दिस प्रोजेक्ट इज कमिंग, ऐसा वैसा जब होता है तो खुद हो जाता है. सो आई डोंट हैव दैट बॉन्ड अलग से कि यार मेरा इनसे अच्छा बंदा है. तो आई नेवर मेड दैट बॉन्ड. तो उन चीज़ों को लेके भी कुछ लोग का था कि वो कभी रिप्लाई नहीं किया, कभी पार्टीज नहीं आया, कभी प्रमोशनल इवेंट्स नहीं दिया हमको. सो वो भी हो सकता है. प्लस और भी चीज़ें थी यार, अभी कैसे एक्सप्लेन करूँ यार. नहीं सी, हाँ दिस इज़ अ गुड एग्जांपल टू एक्सप्लेन यू कि क्योंकि मैं 8 साल हुए हैं, 8-9 साल हुए हैं, तो ऑब्वियसली मेरे इंडस्ट्री में भी एक्टर्स में भी ज़्यादा मेरे दोस्त नहीं हैं. दे आर वेरी फ्यू पीपल. बाकी मेरे अच्छे गुड वर्किंग रिलेशंस हैं, मेरे गुड कलीग्स हैं, ठीक है, अच्छे रिलेशन है टर्म्स, बट कोई फ्रेंड्स नहीं. तो इंडस्ट्री में भी उतना मेरे को सपोर्ट, मैं जब बाहर आया तो मैंने देखा कोई तो फ्रेंड सपोर्ट ज़्यादा नहीं था. इंडस्ट्री के जो एक्टर सपोर्ट होते हैं वो ज़्यादा नहीं था मेरे लिए, ठीक है. तो एक वो पार्ट हो गया. प्लस अब क्योंकि आई वॉज न्यू, तो अब जो मेरे एज के भी हैं, दे विल ऑल्सो नॉट लाइक टू से गुड थिंग्स अबाउट मी बिकॉज कॉम्पिटिशन ही हूँ ना मैं उनका एट दी एंड. तो वो भी ज़्यादा सपोर्ट में नहीं आए. तो इंडस्ट्री वाला जो सपोर्ट था बहुत फ्यू, मतलब 1% मिला होगा. सो इट फेल्ट लाइक कि इंडस्ट्री से कोई नहीं है सपोर्ट. और फिर इंडस्ट्री के लोग जिसके बारे में ज़्यादा बोलते हैं, तो मीडिया ऑल्सो कवर्स देम, वही छापते हैं, वही दिखाते हैं. और फिर बिग बॉस एक बार जब चल रहा होता है तो दैट इज़ ऑन ट्रेंड, तो वो फिर आगे बढ़ाते रहते हैं न्यूज़ को कि ओके अच्छा इस फलाना एक्टर ने इसको सपोर्ट किया, ओ ट्रेंड. तो वो चीज़ें भी थी. तो मीडिया का थोड़ा हो गया था मीडिया राउंड में कि यार ओके यहाँ हम करेंगे, ऐसे ऐसे बोलेंगे. तो वो चीज़ें हुई अंदर, विच इज़ ओके, पार्ट ऑफ गेम. उसको मैं उतना. But how do you take it when I saw the same people going and taking your interview? Yours, Rajat's,
ईशा तो थी नहीं, ईशा तो चली गई वहां से. I gave interview to everybody. Yeah. man. No, I didn't- Isha. I think Isha also wanted to, but she had to go somewhere. she had to go somewhere. Yeah, but Isha, sorry, yours, Rajat's, and Vivian's also. I've seen Vivian also. I'm like, okay, great. When Rajat got evicted and people got to know, because everybody's thinking Rajat could win. There was a possibility that Rajat would win. So when Rajat got evicted, the people were cheering. Okay. Now my problem is, I have no problem with people's expression or opinions. Yeah. But when you are only saying your media and you're doing this, now I swear I knew, and I'm saying this from the bottom of my heart as a matter of concern for them, not to belittle them. मुझे तब पता था कि कोई ना कोई ये रिकॉर्ड करेगा, और ये रिकॉर्डिंग जब जाएगी ना, तो मीडिया को ऑलरेडी लोग बोल रहे थे और ज्यादा बोलेंगे, और वही हुआ. अब देखो यार, जो हो गया उसके बारे में तो नहीं बोल सकते, बट कैसा लगा जब वही सारे लोग आके आपके इंटरव्यूज कर रहे थे? It felt nice. मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, एंड आई गेस कुछ लोगों ने तो इंटरव्यूज नहीं दिए हैं, कुछ लोगों ने तो भगा भी दिया कि तुमने ये वजह बोला था नहीं दूंगा. तो मेरे पास जब आई सेड कम मैन, आई विल गिव इंटरव्यूज टू एवरीबॉडी, यू वांट माय इंटरव्यू, ओके फाइन, यू आर इन द क्यू, कम. मैंने किसी को मना नहीं किया, जितने लोग आए थे आफ्टर फिनाले मैंने सबको इंटरव्यू दिया. एक मैम भी थी, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा उनका, उन्होंने घर में कुछ बोला था कि ऐसा है, बदतमीज है, ये है. फिर आके मुझे बताई भी कि आपके फैंस कुछ ऐसा ऐसा लिख रहे हैं कमेंट्स में. मैंने बोला भी कि ठीक है गाइस, मत करो यार, अच्छी बात नहीं. तो मेरे को ऐसा कुछ वो नहीं है यार, हार्ड फीलिंग्स नहीं है किसी उसके लिए. मैं समझता हूँ कि उनका भी एक जॉब था. मे बी जैसा मैं बोलता हूँ, आई स्टिल डोंट फेयर सेइंग दैट, कि क्या होता है ना, बिफोर गोइंग टू बिग बॉस बहुत सारे PR टेक्निक्स होते हैं कि बाहर ऐसा ऐसा हम प्रमोट करेंगे और ऐसे ऐसे PR पैकेजेस लेंगे. तो ठीक है यार, मे बी दे वर इन अदर पीपल सपोर्ट, उनको ज़्यादा लगाओ कि नहीं यार हमको यहाँ से बेटर मिलेगा एंड वहाँ से ज़्यादा अच्छा है, तो वो दूसरे के सपोर्ट से आए. तो ओके फाइन, अभी हो गया था, वो एक शो था, मुझे पता होता मैं अच्छा ज़्यादा PR लेता. हाँ, बट मैंने उतना PR करवाया नहीं, बिकॉज आई हैड नो आइडिया कि दीज थिंग्स ऑल्सो वर्क. ठीक है, सो तो वो सब चीज़ें हुई. बट जब मिले बाहर आके उन लोगों ने बोला इंटरव्यू करना, ऐसे ओके मैन कम, एंड बाहर सबने बहुत अच्छे से मिला मुझसे. It's not about PR, it's about PR. Yeah, I think you got a lot of PR. Yeah, definitely. And I think even they actually also like you and love you a lot. Yeah, I know they all love me. Yeah, it's अभी true. सबके साथ अच्छा It's कनेक्शन है, सब बात कर रहे हैं. It's just that कि मैं उतना सबसे मिल नहीं पा रहा हूँ, but yes, सबसे बात हुई मेरी. So apart from the music videos, what is the plan? Like, what are you planning to do? A lot of things are there. मतलब इतना हर एक चीज अभी से मत पूछ लो, मेरे पास. Are you doing a web series? बहुत सारी चीजें lined up हैं. Film. What are you doing? Tell Let us. those things come out. इसमें से at क्या the है right वो तो time. बताओ. Let those things come out at the right time. कब आएगा? चलो. हाँ? कब तक आ सकता है ये बाहर? अभी तो we are about to go on flow. Oh, and you are not saying हाँ, अभी मतलब सारी चीजें हो web जाने दो. series या film. चलो. What are you going on floors with? You don't tell me which web series, वो बाद में बता देना after the. हाँ, इन्हीं दोनों में से कुछ एक है. इन्हीं दोनों में से कुछ एक है, वो भी स्टार्ट हो रहा है. एंड वेरी सून आई गेस जब वो लोग प्लान करेंगे, मेकर्स एंड ऑल, they will announce. But tell me something. Now, coming to the concluding part of the conversation. Yep. Today, when you look back at the 18-year-old Avinash who wanted to become an actor, today when you have reached a certain position in life where you've given your family the kind of life that they would have wanted to have and they possibly couldn't, because we all come from middle class families. तो आज जब आप उनके सपने पूरे कर पाते हो, वो 18 साल के अविनाश को क्या बोलना चाहोगे? And I'm glad वो mindset 18 साल के अविनाश का भी उतना ही क्लियर था, वो विजन उतना ही परफेक्ट था जो आज है. And I guess that is the reason I'm here right now. कि वो विजन कभी नहीं हिला कि okay, I have to focus on my goal. I have to be dedicated towards what I'm doing. So I'm glad कि वो उस एज में भी इतना क्लियर था and उसका रिजल्ट आज इस एज में मुझे मिल गया है. So what I can say to the youngsters जो एकदम अभी about to start है, कि make sure whatever you are doing, you have a clear vision that you want to do this in your life and just follow the path and be extremely dedicated and disciplined whatever you're doing. Trust me, success is there. Absolutely. And on that note, मैं ये आपसे पूछना चाहूंगा क्योंकि of course Myntra is our sponsor and I love Myntra. Are you a person who shops a lot online or do you go to stores and shop? Which one do you prefer? I prefer to go do shopping. Like Online. not online, man. अच्छा, जाके. I visit the store and
do shop. पर ऑन आपके पैकेजेस आते हैं, आप डिलीवरीज कितने आपके आते होंगे दिन में? दिन में ब्रो इतना शॉपिंग नहीं करता हूँ. You don't दिन में is good. दिन में मतलब ऐसे नहीं कभी. There are people who have packages like five नहीं, packages नहीं, daily. महीने में एक आध दो आ गए, that's it. What are the things that you usually shop? What do you like shopping? What do I like shopping? If you're talking about the fashion, I would say basic black t-shirts, white t-shirts, and Jackets. gym वाले कपड़े. Gym वाले कपड़े. हाँ, gym apparels. So if you have to go to Myntra right now, you'll buy gym वाले कपड़े. 100%. I am going to give you a gift from Myntra. Oh, Now I don't know how much it will fit into your liking, but I'm Okay. pretty sure that that's something that will help you. You can carry that to the gym for sure. that's. And you lovely. love traveling also, na? Yes, मतलब yes, I love traveling. Man. I've seen a lot of your travel videos. Yeah, I do so- travel. मैं साल में एक दो ट्रिप तो लेता ही हूँ. हाँ, तो ये आपके ट्रिप्स को enhance करेगा. Wow. So this got a is sponsor? that's true, and this is for you from us and Myntra. I would like you to see what we have given Thank you. you so much, Myntra. Thank you. I'm hoping that you like it because we've personally picked it for you. Personally picked it for me. Yes, and it's going to be like a good travel and gym essential. Hopefully. This is lovely and trust me, ये मुझे बहुत काम आने वाला है. मैं अभी ट्रिप पे जाने वाला हूँ अप्रैल में, and you will see me with this bag. Wow. Bas. Thank you so much, man. It looks lovely. Yeah, we picked it for you, and I know you like black. Ah. I know that you love black as a color. Hmm. So thank you for doing this. Thank you. Thank you. Thank you for doing this. And genuinely, मुझे बोलना है कि when I saw Avinash on Big Boss, when I met Avinash a day after you guys came out, I saw Avinash, I knew Avinash, but I feel like I got to know Avinash a lot more through this conversation. Oh, that's lovely. Although I knew bits and parts of your life story, and that was the main idea, you know. I know कि Big Boss is also a part of your life, Yeah. but it's not your entire life. It's a part of life. And it's a life less lived. So मुझे ये है कि होपफुली जो देख रहे होंगे उनमें से भी बहुत सारे एस्पायरिंग एक्टर्स होंगे, आर्टिस्ट्स होंगे, Yes, किसी yes. भी चीज में पैशन अपना फॉलो करना चाहेंगे, तो दे डोंट स्टॉप देमसेल्व्स लाइक यू डिडंट, एंड दे आर ट्रू टू हु दे आर, एंड दे डोंट फॉल प्रे टू कि ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए. जैसे हो वैसे रहो, एंड यू विल ऑलवेज गेट अ लॉट ऑफ प्यार. पीआर भले ही ना हो, बट प्यार जरूर मिलेगा. Definitely, man. Thank you so much. And I want to say something about man. Like, I'm really glad to meet him because मैं बहुत कम लोगों से मिलता हूँ इंडस्ट्री में, like ऐसे personally. And you are one of those people who are very honest, थैंक यू. very genuine, and you're doing your job in a very neutral way, थैंक यू. which is required. थैंक यू. So I'm glad that we have people like you also in the Thank industry. you. How sweet. And trust me, you have a long way to go now, and I can connect with you on a very personal. Same. note कि that, yes, I see that vision in you. I see that dedication in you. And just keep that, and you're doing great, man. Thank you so much. To many more conversations. Definitely. सारे जो प्रोजेक्ट्स आएंगे उसमें बोल के जाओ कि उसके पहले उसके बाद में सारे इंटरव्यूज मेरे साथ होंगे. मैं अपने पीआर टीम को बोलूंगा, अभी पहले पीआर टीम लेता हूँ. तगड़ी वाली पीआर टीम, बड़ा पीआर पैकेज लेके बोलता हूँ कि मेरे जो भी प्रोजेक्ट्स आएंगे सब नैन के यहाँ हम प्रमोट करने जरूर आएंगे. बिल्कुल. एंड आई डोंट नीड एनी मनी फॉर दैट. ओनली लव इज इनफ. दैट्स अबाउट इट. Yeah, that's great. Thank you so much, guys. Thank you.